the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, you are warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 03056319464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Respected students, today we'll discuss what is allophone, what is phoneme, what is phone, allophone, and phoneme. We'll also discuss what is phonology. When we discuss about phonetics mean you study the sound system of human language. For example, you study how many sounds your vocal tract can speak. Your mouth is a factory of sound. You can produce countless sound, and these all sounds are not you can say it's not possible to apply all sound you produce your mouth. Your language is not, you could say, fixed one. It's arbitrary. The relation between objects and the name, it's arbitrary. You see that if you talk about a monkey, so it is called in Urdu, we say bandar, but we also say monkey. But in other language it will be having some different name. The same way, when you move from one language to another, name will be changed. It's totally arbitrary in sense. So talk about phonology. Phonetics, just like that it collects data, raw information, raw material. Phonetics get raw material and phonology cooks it. The difference between phonetics and phonology is generality and specification. Phonology is a language specific. It's related to specific language. You can apply phonetic knowledge, the knowledge of phonetics and its study on a specific knowledge. When you apply same knowledge on specific language, it will be called phonology. When you study phonology, it means you are going to study certain language, a specific language, and you are going to classify its sound, phonemes, allophones, and vowels and consonants in a specific language. It's a language specific. It's confined. In very simple word, I would say phonetics is a word and phonology is country. Phonology is in the phonetics. It means phonetics is a big term, and phonetics can encapsulate phonology inside it. Your phonetics is just like a word, and phonology is just like country. So phonetics is very big term. It encapsulates all over the language. It encapsulates all the human language. It encapsulates language of the world. But phonology is language specific. We'll find sound structures. We'll study specific language, its sound, its phoneme, its allophone, its vowels, its consonant, long vowel, short vowel. And when we study manners of articulation in specific language, we'll be studying about the plosive sound, nasal sound, fricative sound, affricative sound, literal sound, approximant, or glide. I will tell you all one by one. Plosive, when you say, for example, you say stop, you say top, and you say stop. There is one word, the word is top. When you say top, it means your mouth will give puff. It will puff out. It will give plosive sound, plosive voice. So wind just air will come through in a plosive form. So please speak top, and you say stop. The first one is the sound is aspirated. The first one, the sound is voiced. Make sure voiced and aspirated is the same one. If you further want to check what is aspirated and what is non-aspirated or voiceless sound, you can check just in front of your mouth. You say top.
sound will come out like a puff. It will puffed up. It will just in a plosive form. It means suddenly in an explosion form, the voice, or you can say air will come out from your mouth. You say top, you say stop. It means the in the same sound, top, ta sound. So when you say top, it is giving plosive sound. It is a aspirated, it's a voiced one. But when it comes stop, stop, it is non-aspirated. We can check it. Just put your your three fingers in front of your mouth and say top. Sound will come out in a puff form. It will come out in just like a plosive form. Suddenly voice explosion, explosion it will come out. But when you speak non-aspirated sound, that will be little slow. It will not puffed up. It will not in a explosive form. It will not in a plosive forms. So this is what the difference between plosive. This is what the difference between aspirated and non-aspirated voice. So what is phoneme? Phoneme is mental abstract representation of speech sound. It's abstract. You say that we study about these are written in double slash. Phonemes, these are written in double slash, like a, pa, pa, u, oe. So these are the sounds, these are the phonemes, and they are 44 in number. Question can arise in your exam. There can be question, what is difference between allophone and phoneme, and what is difference between aspirated sound and non-aspirated sound. It can occur in your exam. So then you will have to tell this. So please write over here top and stop. Now we want to check whether the sound is aspirated or non-aspirated, whether the sound is voiced or voiceless. You will check just put three finger in front of your mouth. If you feel there is the sound is just in an explosion form, it's coming out of your mouth, it is a voiced sound or it's an aspirated sound, like top, and you say stop. Stop and top, there is a great difference. It means the first one is aspirated and second one is non-aspirated. So the T, so here the top and stop, it is allophone. If you write in a double slash and single sound, it is in a single, you could say single sound, like pa, pa, ta, da, and you write in double slash, it will be known as phonemes. But once you write just like a one word like top, stop, keep, deep, these will be allophones. And allophones, you know that allophone can represent, each sound can represent a different sound. I mean to say phonemes can be all together, can be collected. If number of phonemes are collected, they will be known as, they are written in just like brackets, it will be known as allophone, like keep, deep. Keep and deep are allophones when we just put it in bracket. So please write it down. When you write allophones, it is written in the form of word, like one allophone may have many phonemes in it, like keep. So if we write keep, it may have three phonemes in it, like ka, e, pa. Please write keep is allophone, deep is allophone, and one deep and key word, it is having more than one phonemes, da, e, pa. And then we write stop and top. So there is a you could say sa sound, ta sound, a sound, and pa. So one allophone may have many phoneme in it. So phoneme is, you could say, in simple word you can say it's abstract sound in your mind, but when you give it phonetic realization, when you give it a physical form, it will be known as allophone. Allophone is a phonetic realization of the phonemes.
Phonemes is just mental representation. It is your mind. It's nothing to do with reality. It's just the concept in your mind that this sound is a pa and ka and cha and sha. So that's in your mind. It's a phoneme. Now let's discuss about today's assignment. Please come to open in your group. There is a assignment. आपके ग्रुप के अंदर एक असाइनमेंट है, उसका नाम है फोनोलॉजी. उसको ओपन कर लीजिए, उसको हम पढ़ते हैं और आप अपने नोट्स, जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप अपने लैपटॉप के अंदर एक अपना फोल्डर बनाइए और जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ उसको सेव करते जाइए. जब आपके टेस्ट हों तो मुझे आप इनसे टेस्ट दे लिया करें. और आपके माशाल्लाह स्टूडेंट और भी आ रहे हैं कुछ, तो उनको भी हम ऐड करते हैं. हो सकता है कि हमें ये क्लास उस पर शिफ्ट करनी पड़े स्काइप के ऊपर. पार्ट 2 के स्टूडेंट काफ़ी माशाल्लाह आ रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. फोनोलॉजी हम पढ़ते हैं. ओपन कीजिए असाइनमेंट. अगर आपने ओपन कर लिया तो काइंडली मुझे बता दीजिए. हाँ जी, फोनोलॉजी. फोनोलॉजी है कि किसी ख़ास लैंग्वेज के साउंड सिस्टम को, उसकी डिस्क्रिप्शन को, प्रिस्क्रिप्शन को, उसके वे ऑफ राइटिंग को, उसके वावल कॉन्सोनेंट्स और स्पेसिफिक लैंग्वेज में उसकी फोनोलॉजी को, उसकी साउंड्स को स्टडी करना किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर, उसको फोनोलॉजी कहते हैं. फोनेटिक्स होता है कि पूरी दुनिया की जो लैंग्वेज हैं उनका जो सिस्टम स्ट्रक्चर है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कौन सी चीज़ उसमें इन्वॉल्व होती है, अक्यूस्टिक और ऑडिटरी, और हमने ये सारा पढ़ा. हमें पता है कि फोनेटिक्स क्या होता है, हमें पता है कि फोनोलॉजी क्या होता है. हम इनके बारे में लिख सकते हैं. फोनेटिक्स पूछ ले तो हम फोनेटिक्स को डिफाइन करेंगे और फोनेटिक्स से रिलेटेड उसका जो सिस्टम इन्वॉल्व हैं, जो चीज़ें, वो हम डिफाइन करेंगे. अगर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पूछ ले या ऑर्गन्स ऑफ स्पीच पूछ ले तो वो भी हमें पता है कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं. अगर हमसे वो मैनर ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पूछ ले तो हमने वो जगह जहां से साउंड निकलती है वो बताएंगे. मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पूछ ले तो एक तो ये है कि साउंड जो है वो पफ अप प्लॉसिव फॉर्म में निकलती है, उसे हम कहेंगे प्लॉसिव साउंड. जैसे फूल, फ्लक, ठीक है, फॉल एक नेम है ना, हम किसी को कहते हैं फॉल, तो ये भी एक प्लॉसिव साउंड में निकल रही है. हमने उनकी मिसालें दे के उनको उसको डिफाइन कर देना है. नेसल साउंड जो नाक से साउंड निकलती है, जैसे न, म, इंक, ये साउंड नेसल साउंड है. फ्रीकेटिव जो साइडों से निकलती है. लिटरल साउंड भी हमने कल डिफाइन किया, देखा इसमें. और अप्रोक्सीमेट ग्लाइड फॉर्म में जो ग्लाइड होकर निकलती है, ग्लाइड भी कि जो जहां से हमारा फ्रेशस, तो उसमें एक ग्लाइड बनती है. यानी जहां हमारी साउंड जो है वो एक ग्लाइड फॉर्म में निकलती है. वो कौन कौन सी साउंड है वो सारी हम 1 बाय 1 उनको एक्सप्लेन कर देंगे. लेकिन फोनोलॉजी का पूछ ले तो फिर हमने फोनोलॉजी का डिफाइन करना है कि फोनोलॉजी क्या है, फोनोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एलोफोन्स क्या हैं, फोनीम्स क्या हैं, फोन्स क्या हैं, इसका सिस्टम क्या है. किसी लैंग्वेज के अंदर पूछ ले. एक सेगमेंटल फोनोलॉजी होता है और एक सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी. हम इन दोनों को डिफाइन करेंगे. एक डायक्रोनिक फोनोलॉजी होता है और एक सिंक्रोनिक फोनोलॉजी होता है. मैंने कहा सिंक्रोनिक का मतलब ये होता है, ये फोनेटिक्स के अंदर भी होता है. सिंक्रोनिक फोनोलॉजी ऐसी फोनोलॉजी है कि किसी लैंग्वेज के साउंड सिस्टम को स्टडी करना जो करंट टाइम लैंग्वेज मौजूद है, जो कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज आपके सामने है. और डायक्रोनिक के खास वक्त से एलिजाबेथन एज से लेके रोमांटिक एज तक, रोमांटिक एज से लेके मॉडर्न एज तक, मॉडर्न एज से लेके पोस्ट मॉडर्न एज, ये खास पीरियड की टाइम लैंग्वेज का जो ड्यूरेशन है, उसके फोनिक सिस्टम जो है उसको स्टडी करना डायक्रोनिक कहलाता है. तो आप इनको सिंपल फॉर्म में अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. अगर नहीं लिखना आ रहा तो आप आज की जो असाइनमेंट है इसको पढ़ के भी लिख सकेंगे. फोनोलॉजी. Phonology is the branch of linguistics which deal with the study of the sound system of language. It is concerned with the range of functions of sound in a specific language. Phonetics and phonology are concerned with the phonetic और phonology वो कहता है concerned with the study of speech and more particularly with the dependence of speech on sound.
साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप साउंड नहीं है तो आप फोनेटिक्स तो नॉलेज ही साउंड का है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू टर्म्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू ग्रैस्प द फैक्ट दैट द साउंड इज बोथ अ फिजिकल एंड मेंटल फिनोमिना। साउंड जो है वो मेंटल फिनोमिना भी है, फिजिकल भी। मैंने आपको बताया कि फोनीम्स जो है वो आपके माइंड में है कि ये साउंड फा है, ये बा है, ये डा है, ये खा साउंड है, ख ग श छ। ये साउंड कौन कौन सी हैं, ये आपके माइंड में है। इसको कहते हैं, ये आपकी क्या है, अब्स्ट्रैक्शन है आपके माइंड के अंदर। लेकिन जब आप अलोफोन की शक्ल में लिख देंगे डबल वो ब्रैकेट के अंदर, तो वो फिर क्या अलोफोन्स बन जाएंगे। और एक अलोफोन जो है वो मैनी फोनीम्स अपने अंदर रखता है। जैसे खीप लिखते हैं हम, खीप, डीप, खीप एंड डीप, तो डा, ई, फा, ये 3 साउंड उसके अंदर आ गई। ठप, ठा, आ, फा, 3 साउंड उसके अंदर आ गई। यानी फोनीम जो है वो अलोफोन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। अलोफोन्स जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। फोनीम्स जो है वो ऐसे डबल स्लैश जो होती है, टेढ़ी सी स्लैश नहीं होती, बैक स्लैश, इसके अंदर इसको इनकैप्सुलेट किया जाता है। That this divisions between the physical and mental dimensions of speech sound is reflected in terms of phonetics and phonology. According to Bloomfield, phonology is the organizations of the sounds into patterns. यानी साउंड्स जो है उसका एक पैटर्न में इसको लिख दिया जाता है। Every language makes its own selections of sounds and organizes them into characteristic patterns. This selection of sounds and their arrangement into pattern constitute the phonology of the language. Kinds of phonology, कितनी किस्म की phonology होती है? Within phonology, 2 branches of studies are usually recognized: segmental and suprasegmental. अब segmental phonology के अंदर क्या है? कहता है segmental phonology analysis speech into segments called phonemes. यानी जब आप सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर फोनीम्स आते हैं। उसके अंदर क्या आएगा? उसके अंदर फनीम आएंगे। और फनीम्स जो हैं वो हर लैंग्वेज के अंदर कितने होते हैं हम वो स्टडी करेंगे। आलोफोन क्या होता है, एस्पिरेटेड क्या होता है, नॉन एस्पिरेटेड क्या होता है, एक लैंग्वेज के अंदर कितने फनीम्स होते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ मेनी फनीम्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज? यू नो देयर आर 44 फनीम्स एंड आउट ऑफ विच 20 आर वावल एंड 24 आर कॉन्सोनेंट्स। और हम उसमें जानते हैं कि शॉर्ट वावल क्या है, लॉन्ग वावल क्या है, फ्रीकेटिव क्या है, नेसल साउंड क्या है, उसके प्लोसिव साउंड कहाँ पे आती है, एल्विलर साउंड कहाँ से आती है। यानी ये हम सारा जानते हैं और उसको हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। अगर हमें इसकी रियलाइजेशन है तो हम फिर साउंड को उसका हक अदा करेंगे और जो हम बोलेंगे नेटिव स्पीकर उसको फौरन समझ लेगा। देखिएगा फनीम्स, फनीम क्या है? मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि फनीम्स जो है वो ये स्लैश के अंदर लिखे जाते हैं और ये एक एक साउंड रखती है अपनी, इसकी अलग अलग साउंड होते हैं, लेकिन आलोफोन में ये इकट्ठे आते हैं एक वर्ड की फॉर्म में। मोस्ट लिंग्विस्ट until recently at least have regarded the phoneme as one of the basic units of language, but phonemes in purely physical terms, यानी कुछ कहते हैं कि ये एक अब्स्ट्रैक्ट टर्म है, कुछ कहते हैं ये एक फिजिकल है। एनी हो ये एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, अब्स्ट्रैक्ट मेंटल रिप्रेजेंटेशन है जो इंसान के माइंड के अंदर होता है। आप इसे जितना भी याद करने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें, ये नहीं याद रहते, बल्कि आपको जस्ट उनकी साउंड का पता होना चाहिए। अदर लाइक द सेपियर्स हैज प्रेफर्ड, ये भी एक लिंग्विस्ट है, वो क्या कहता है? हैव प्रेफर्ड साइकोलॉजिकल डेफिनेशन। सम रिगार्ड द फोनीम्स ओनली एज एब्स्ट्रैक्शनल फिक्शन, फिक्टिशियस होता है इमेजिनरी यूनिटी, एंड आर्ग्यूज दैट इन अ लैंग्वेज दीज आर नॉट फोनीम बट एलोफोन्स दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी। यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट शक्ल में होते हैं, जैसे फा, बा, टा, खा, का, श, छ, ये सारी साउंड्स क्या है? वो कहते हैं ये सारी एक अब्स्ट्रैक्ट फिक्टिशियस साउंड्स हैं और इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि जो एलोफोन है वो एक फोनेटिक रियलाइजेशन होती है साउंड की, वो तो लिखते हैं ना फिर हम पूरा। तो आगे कहता है कि फर्दर मोर लिंग्विस्ट ऑफ द कोपनहेगन स्कूल ट्रीट द फोनीम्स एज द ग्लासीम्स एंड रिगार्ड देम एज द अलजेब्रिकल यूनिट, यानी वो उनको अलजेब्रिकल यूनिट कहते हैं, जैसे कोई अलजेब्रा होता है।
The phonemes, according to the Bloomfield, is of the minimal unit of the distinctive sound feature. ये एक नुमाया साउंड फीचर होते हैं. Every language makes use of the limited number of such contrastive sounds of ring. अब हर लैंग्वेज के अंदर आप ये ना कहें कि उर्दू के इंग्लिश के 44 है तो उर्दू के भी ऐसे हैं. उर्दू के और हैं, पंजाबी के और हैं, स्पेनिश के और हैं, फ्रेंच के और हैं, जर्मन के और हैं. उनके फोनीम्स वेरीड है और डिफरेंट है. और जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्ररी है ऑब्जेक्ट और उसका जो नाम है. एक में और है, दूसरे में और है, तीसरे में और है, चौथे में और. हर लैंग्वेज में एक चीज का नाम ही डिफरेंट है. इसका मतलब है कोई लैंग्वेज नहीं होती, ये लोगों ने, सोसाइटी ने दी हुई है, नाम दिए हुए हैं जबान को. लैंग्वेज मेक यूज ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ सच कॉन्ट्रास्टिव साउंड ऑफ फनीम. इंग्लिश फॉर एग्जांपल हैज 44 फनीम्स, जिसमें 20 वावल है, 24 क्या है, कॉन्सोनेंट्स है. फ्रेंच जो है उसके 34, जर्मन के 46 फनीम, स्पेनिश के 24, इटालियन के 49. ये सारे याद कर लीजिएगा, 3-4 याद कर लीजिएगा. 49 जापानीज के 107 और चाइना में 422 फनीम्स होते हैं, सेट्स होते हैं. अरबिक जो है हैज 28, उर्दू हैज 37, पंजाबी हैज 35, 10 वॉवल्स हैं, 25 कॉन्सोनेंट्स हैं. सराकी हैज 42 फनीम्स, सिंधी हैज 62, पश्तो 44 एंड हिंदी 38. 28 कॉन्सोनेंट होते हैं हिंदी में और 10 जो है वो वॉवल्स होते हैं. From this data, it is clear that each language has different phonemes. Therefore, phonology of each language is different. अब जितनी भी लैंग्वेज आपके सामने मैंने डिस्कस की हैं, ये बताई हैं, इंग्लिश के तो 44 फनीम है, जिसमें 24 कॉन्सोनेंट और 20 वावल हैं, जबकि हमने दीगर लैंग्वेजेस को देखा उनमें डिफरेंट फनीम्स हैं. और ये फनीम्स जो हैं, हाँ जी प्लीज बोलिए. उर्दू का मैं टीचर नहीं हूँ. यानी हो उर्दू में जैसे होती हैं साउंड्स वगैरह जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, यानी इसकी डेफिनेशन तो यही है ना, चाहे वो जोन सा भी हो, क्योंकि हमने जो उसमें वावल और कंसोनेंट पढ़ा फोनेटिक्स के अंदर, वो है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन के जरिए, जो थोड़ी सी भी रुकावट के जरिए गुजरती है, आवाज़ निकलती है, वो सारे कंसोनेंट साउंड है. और जो हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं वो वावल साउंड है. यही डेफिनेशन है. ये आप किसी लैंग्वेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं. आप देख लें, अगर वावल आप उर्दू में देखें कि कौन सी ऐसी साउंड है जो आप बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के निकाल लेते हैं. जैसे इसमें तो हम जैसे कहते हैं, जैसे वी की साउंड है, AEIOU, तो जो साउंड एज वावल साउंड होगी वो हमारे बगैर किसी रुकावट के, स्ट्रक्चर के, बगैर ऑब्स्ट्रक्शन के मुंह से निकल जाएगी. एंड द साउंड विच इज़, क्योंकि ये साउंड की स्टडी होती है मोस्टली, लैंग्वेज तो है ही स्पीकिंग का नाम, पहले स्पीकिंग ही होती है, तो इसलिए हम देखेंगे कि जो सी भी लैंग्वेज है जिसमें हम आसानी से अल्फाज निकाल रहे हैं वो सारे वावल हैं, और जो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ निकल रहे हैं वो कॉन्सोनेंट है. आगे देखिएगा. फ्रॉम दिस डाटा इट इज क्लियर दैट ईच लैंग्वेज हैज डिफरेंट फनीम. हर लैंग्वेज के डिफरेंट फनीम्स हैं. देयरफॉर फोनोलॉजी ऑफ ईच लैंग्वेज इज डिफरेंट. हर लैंग्वेज की जो फोनोलॉजी है वो डिफरेंट है, उसकी फोनोलॉजी और हो सकती है. यानी जिस तरह से हम इंग्लिश को वैल्यूएट कर रहे हैं, हो सकता है उसकी कोई और हो, जैसे उनके फनीम्स भी ज़्यादा हैं. आप देखिए यहाँ पे एक लैंग्वेज है चाइनीस लैंग्वेज में 422 फनीम्स है, जबकि इंग्लिश में हमारे पास ओनली 44 है. सारे फनीम्स याद रखिएगा, लेटर्स और होते हैं और फनीम और होते हैं. लेटर है AEIOU, ये तो लेटर है ना, अल्फ़ाबेट है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वो तो 5 हैं, लेकिन उसको जब हम साउंड के लिहाज से एवेल्यूएट करेंगे तो वो कुछ और होगा. आप अगर मोस्टली इंटरव्यू में जाएं SS इंग्लिश के, तो आपसे वो ज़्यादा क्वेश्चन ये करते हैं, वो कहते हैं जी आप बताएं हाउ मेनी साउंड्स आर इन इंग्लिश. अब आपको अक्सर लोगों को पता है साउंड कौन, वो हैरान हो जाते साउंड कौन क्या है. भाई 44 साउंड है, कितनी कंसोनेंट हैं, 24 हैं, कितनी वावल हैं, 20 हैं. ठीक है जी. अगर आप वो 5 पे ही अटके रहे, 5 तो वो तो अल्फ़ाबेट, वो तो लेटर है उसके, वो भी वावल्स हैं. देखिएगा. फ्रॉम दिस डाटा इट इज क्लियर दैट ईच लैंग्वेज हैज डिफरेंट फनीम्स, देयरफॉर फोनोलॉजी ऑफ ईच लैंग्वेज इज डिफरेंट. आप जोन सी लैंग्वेज स्टडी करोगे, आपको उसका वावल और कॉन्सोनेंट आपको सिखाएंगे. वावल कॉन्सोनेंट को सीखे बगैर आप लफ्जों को प्रोनाउंस नहीं कर सकते. आगे देखिएगा.
फनीम्स आर कॉन्ट्रास्टिव सेगमेंट। आई होप कि आपको जो फनीम और एलोफोन का जो डिफरेंस है ये आपको पता चल गया होगा। ये खासा कम्प्लेक्स है, बच्चों को पता नहीं चलता, मैंने सिंपल फॉर्म में आपको बता दिया, सिंपल वर्डिंग। फनीम्स आर कंट्रास्टिव सेगमेंट। फनीम्स नेवर, फनीम्स दोबारा फिर सुन लीजिए, फनीम है कि जो 44 साउंड की हम उनको स्लैश के अंदर, वो जो डबल स्लैश के अंदर फा बा ठा खा छ ग स च, ये सारी साउंड जो हम अलग-अलग से 44 हमने जो बनाई हुई है, चाहे वो वावल है या कॉन्सोनेंट, वो सारे फनीम्स हैं और वो 44 है। और एलोफोन जो है वो उसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं, जैसे खीप, डीप, टॉप, स्टॉप, तो डल। तो ये सारी साउंड्स हैं, जब हम इनको लिखते हैं, इन साउंड को हम इसकी फोनेटिक रियलाइजेशन में लिखते हैं तो वो एलोफोन कहलाता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन फोनीम्स एंड एलोफोन्स। Phonemes are contrastive segment. Phonemes are never capitalized and always written in diagonal. ये ऐसे तिरछे जैसे टेढ़े फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे बैक इनकी स्लैशेस भी ऐसे टेढ़ी सी होती हैं। Thus, the precise definition of the phonemes has been the subject of much discussion among linguists, and there are two major points of view. Mostly लोग जो है ना इसमें confused रहते हैं. The distinctive features theory, it is developed by the Trubetskoy and the Prague school. They consider a phoneme to be a bundle of distinctive features. Pa, in English, pa. अब जरा बोलें फा तो फौरन आपको पता चलेगा मेरे मुंह से एकदम हवा बाहर निकल रही, फा। तो दिस इज अ प्लॉसिव्स aspirated. In English, it is considered to be made up of the bilabial stop voiceless. The classification theory, it is developed by the Daniel John. When considers, अगर हम वावल पढ़ेंगे तो वावल के बारे में हम इस लिंग्विस्ट है कि इसको डिस्कस करेंगे, इसका नाम है डैनियल जॉन। इसको हम डिस्कस करेंगे, वावल की असाइनमेंट लहदा से पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट की लहदा से पढ़ेंगे। When consider the phonemes to be a group of family related sounds, pha, in English consisting the pha and pa, as the spin and pin. स्पिन, अब स्पिन जो है ना इसमें जो साउंड है वो क्या है, वो नॉन एस्पिरेटेड है। स्पिन में क्या है, स्पिन, स्पिन, आप खुद बोलें अपने मुंह से, स्पिन, स्पिन, इसमें नॉन एस्पिरेटेड है, पफ अप नहीं हो रही, एकदम हवा निकल नहीं रही वैसे, पफ्ड। तो अगर हम फिन बोलें तो फिन, फिन, ये एस्पिरेटेड है। So we may say that the phoneme p या pha has two allophones, यानी अब स्पिन में और है और फिन में और है। And pha या फिन in an aspirated and aspirated form, they are simply different phonetics varieties of their respective phonemes. जो ph, जिसके ऊपर ph लिखा हुआ है वो क्या है, एस्पिरेटेड है। जो सिंगल पी है, फा लिखा हुआ है, तो वो क्या है, वो एस्पिरेटेड, वो नॉन एस्पिरेटेड है, तो एक एस्पिरेटेड है। दे आर सिंपली डिफरेंट फोनेटिक वैरायटी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फोनीम्स। द टर्म लिंग्विस्ट्स यूज फॉर दीज वैरायटीज इज एलोफोन। इनके लिए वो एलोफोन इस्तेमाल करते हैं। एलोफोन्स आर ऑलवेज इनक्लोज्ड विद स्क्वायर ब्रैकेट। इसको स्क्वायर ब्रैकेट, जो बड़ी ब्रैकेट्स होती है ना, इसके दरमियान लिखा जाता है। देखिएगा, दे आर फ्रीक्वेंटली अकम्पनीड बाय अ स्मॉल सिंबल्स आर डायक्रिटिक्स। डायक्रिटिक का मतलब होता है जो ऊपर एच नहीं लगा देते वो, उसको डायक्रिटिक कहते हैं। which indicates the pronunciations forms of the segment. It is added to symbol to alter the value. Example कहता है कि the various accent the sign of devoicing, और उसने वो चार जब स्लैश से बताया वॉइसिंग था, उसके ऊपर वॉइसिंग साउंड है तो उसमें वो उसने बताया ऊपर वो निशान से लगा के।
एंड मार्क्स, और उसके बाद एच साउंड आप उस पर, अगर तो वो एस्पिरेटेड है तो आप उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एच लिख देंगे, तो दैट विल बी नोन एज एस्पिरेटेड, डायक्रिटिक इसे कहते हैं। सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी। अब सुप्रा सेगमेंटल में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें। सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी एनालाइजेज दोज फीचर विच एक्सटेंड ओवर मोर देन वन सेगमेंट। अब सुप्रा सेगमेंटल में देखिए, सुप्रा सेगमेंट, हाँ जी, इसको कहते हैं कि ये दूसरा है, क्या उसे कहते हैं, अनवाइस्ड। मुझे ना अभी इस मेरे माइंड यस, ये स्ट्रेस भी दो तरह के होते हैं, एक लोअर स्ट्रेस होता है, एक हाई स्ट्रेस होता है, एक थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस होता है, ये जीरो स्ट्रेस होता है। वो अब इंशाल्लाह तो नीचे हम यही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जब हम स्ट्रेस की उसमें आएगा। ये स्ट्रेस के 3 लेवल होते हैं, जीरो स्ट्रेस है, फिर उसके बाद लोअर स्ट्रेस है, और वो नीचे आता है। जो अनस्ट्रेस होता है वो नीचे आता है, जो स्ट्रेस होता है वो ऊपर आता है। तो ये उसकी है, हाँ जी, ये लिखे होते हैं। मैं आपको ना कुछ मेरे पास है तो मैं उसके स्नैपशॉट सेंड करता हूँ, उधर भी आप देख लीजिएगा, मैं करता हूँ सेंड। अच्छा जी, सुप्रा सेगमेंटल में जो जो चीज़ें आप डिस्कस कर रही हैं ना वही होंगी, जैसे जैसे इंटोनेशन है, सिलेबल्स है, स्ट्रेस है, रिदम है, ये सारी चीज़ें। और ये आप देखेंगे कि ये चीज़ें अगर आप पोइट्री करना चाहते हैं अच्छी, तो ये उसमें भी यूज़ होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये रिदम क्या है, स्ट्रेस क्या है, फूट क्या है, एम्बिक पेंटामीटर क्या है। इसके ऊपर मैंने लेक्चर दिया है, शायद रबिया ने वो मुझसे लेक्चर लिया हुआ। एम्बिक मैंने फीट बताया, और आपको आइएम्बिक पेंटामीटर बताया, ट्रोकेक मीटर बताया, और उसके अलावा एनाफेस्टिक मीटर बताया मैंने आपको, ट्रोकेक। तो सारे ये हमने डिस्कस किए हुए। तो ये चीज़ें देखें, सिलेबल, इंटोनेशन, स्ट्रेस, रिदम, आप याद रखें कि सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी में हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। सिलेबल क्या है? ईच चेस्ट पल्स टू स्पीक, टू प्रोनाउंस अ साउंड इज नोन एज सिलेबल। मिसाल के तौर पर मैं अभी सिलेबल ही बोलता हूँ। सिलेबल के अंदर कितने सिलेबल्स हैं? कितने सिलेबल्स? सिलेबल्स कितने काउंट करें? सिलेबल्स यानी जितनी मेरी मिनट से वो साउंड आ रही हैं, चंक्स आ रही हैं साउंड की, वो सारे सिलेबल। मैं कहता हूँ मल्टीप्लीकेशन, देखें ये कितने इसके अंदर आ गए। तो आप एक बात याद रखिएगा, इफ यू वांट टू नो अबाउट सिलेबल, इट्स वेरी इजी, यू कैन काउंट इट्स ईच सिलेबल मस्ट हैव एट लीस्ट वन वावल इन इट। वावल साउंड उसके अंदर जरूर होगी, एक वावल साउंड उसके अंदर जरूर होगी। एक मोनोसिलेबल भी होता है, जैसे हॉट है उसके अंदर एक ही सिलेबल है, ठीक है। गॉट है उसके अंदर एक ही है, हॉट है उसके अंदर एक है, कैट है उसके अंदर, डॉग है उसके अंदर एक है। यानी उसके जितने उसके अंदर वावल साउंड होंगे उतने वो सिलेबल होंगे। फोनोलॉजी तो कितने आप बताएं इसके? फोनोलॉजी, जितनी साउंड मेरे निकल रही है, चंक्स निकल रही हैं, ये सारे सिलेबल। इंटोनेशन, व्हाट इज इंटोनेशन? एक होता है राइजिंग रिदम, एक होता है एक लोअर रिदम होता है, एक राइजिंग। ये हमने पढ़ा था जब हमने पोइट्री का डिस्कस किया था, एक्सेंटेड और नॉन एक्सेंटेड, और आइएम्बिक पेंटामीटर, टेट्रामीटर, हेप्टामीटर, हेक्सामीटर, ये सारे हमने जब डिस्कस किए थे तो उसमें हमने ये चीज़ें देखी थी। एक राइजिंग रिदम होता है, एक लोअर रिदम होता है। तो ये इंटोनेशन भी बेसिकली यही चीज़ है। मिसाल के तौर पर हम किसी सेंटेंस में किसी खास चीज़ पे कभी जोर देते हैं। डू यू, मैं आपसे कहता हूँ, अमरीन आपसे कहता हूँ, डू यू नो फोनेटिक्स? तो आप मुझे क्या कहेंगी? यस सर आई नो फोनेटिक्स। तो मैं अगर आपसे कहता हूँ डू यू अमरीन नो फोनेटिक्स,
अब देखिए जैसे जैसे मैं स्ट्रेस देता जाऊंगा खास वर्ड पे, आप सारे मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे। फिर मैं अगर और भी हैरान हो जाऊं, डू यू नो फोनेटिक्स, तुम भी फोनेटिक्स जानती हो? तो इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि आपको तो कुछ नहीं आता, आप भी फोनेटिक्स जानती हैं। तो मीनिंग इज टोटली चेंज्ड। तो इंटोनेशन जो है वो टोटली मीनिंग चेंज कर देता है। आप कहीं पे थोड़ा सा उसको राइज कर देते हैं उस इंटोनेशन को, कभी उसको लो कर देते हैं, मीनिंग इज इंटायरली चेंज्ड। आई विल सी यू टुमारो, आई विल सी यू टुमारो, आई विल सी द पिकॉक। तो टोटली मीनिंग्स आर चेंज्ड बिकॉज इट्स अ स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज। ये एक स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज है इंग्लिश। आप स्ट्रेस दें, वो वर्ब से क्या बन जाएगा, वो वर्ब से नाउन बन जाएगा, नाउन से वर्ब बन जाएगा। तो सेंटेंस भी चेंज हो जाते हैं, वो उसको इंटोनेशन कहते हैं। स्ट्रेस, ये तो हमने देखा कि प्राइमरी स्ट्रेस होता है, सेकेंडरी होता है, फिर हाई डिग्री स्ट्रेस होता है। ये तीनों स्ट्रेस हम स्टडी करेंगे। इसकी असाइनमेंट भी, रिदम, इसकी भी असाइनमेंट बनेगी। फोनेटिक्स कंबाइंस टू फॉर्म्स द नेक्स्ट। अब देखिए ना, ये हमने दो सेक्शन जो है फोनोलॉजी के हमने डिस्कस किए हैं। एक है जिसके अंदर वो वावल, कॉन्सोनेंट, वॉइस्ड, अनवॉइस्ड, एस्पिरेटेड, नॉन एस्पिरेटेड, अलोफोन्स, उसके बाद फोनीम्स, फोनिक्स, वो एक साइड पे है। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या उसका सेक्शन है फोनोलॉजी का, कि जिसमें हमने रिदम देखना है, जिसमें हमने स्ट्रेस को देखना है, जिसमें हमने इंटोनेशन को देखना है, जिसमें हमने सिलेबल को देखना है। इसकी अलग अलग असाइनमेंट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगी, आप परेशान ना हो। उसके बड़े ज़बरदस्त नोट्स हैं हमारे पास। Phonemes combines to form the next higher units named syllables. Syllable is the sounds or the group of sound produced by the single chest pulse and containing a vowel. वही चीज़ जो मैंने बताई। It is a larger than the phonemes and smaller than the word. Stress refer to degree of force used producing the syllables or word. आप खास आप देखें contest या contest। आप जैसे टेस्ट पे जोर देंगी वो वर्ब बन जाएगा, खन पे टेस्ट जोर देंगी तो वो नाउन बन जाएगा। प्रोटेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो गया, वो क्या बन गया, वो अब क्या बन गया, वर्ब बन गया। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच को भी स्ट्रेस जो है चेंज कर देता है। राइज एंड फॉल्स इन द पिच ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग इज कॉल्ड इंटोनेशन। रिदम इज द रेगुलर repetitions of some kind of pattern, some parts of which are stressed and some are unstressed. Another distinctions is made between the diachronic phonology and synchronic phonology. हमने इसको बड़ा डिटेल डिस्कस किया हुआ है, आप इसको डिस्कस कर सकती हैं सुप्रा सेगमेंटल में। द फार्मर स्टडी, यानी जो पहली है वो कहता है पैटर्न्स ऑफ साउंड चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। एक खास पीरियड के अंदर जो साउंड है कैसे चेंज हुआ है। केले शेक्सपियर ने 50,000 वर्ड कॉइन किए थे। शेक्सपियर से पहले लैंग्वेज इतनी रिच नहीं थी। द फार्मर स्टडी द पैटर्न साउंड चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज द लेटर, यानी बाद में जो है कौन सी सिंक्रोनिक जो फोनोलॉजी है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, द पैटर्न रिगार्डलेस ऑफ प्रोसेस ऑफ द हिस्टोरिकल, उसमें हम हिस्टोरिकल चेंजेस नहीं देखते। इन शॉर्ट द डिफरेंस बिटवीन द फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी इज दैट ऑफ द जनरलिटी एंड पर्टिकुलरिटी। ये तो आई थिंक आपको बड़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का डिफरेंस पूछ लें आप उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। और एक बात याद रखिए कि किताबों का लिखा जो होता है ना वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होता है, डिस्टॉर्शन होती है, एम्बिगुअस होता है, वेल एक्सप्लेन्ड नहीं होता इतना। जब टीचर आपको एक्सप्लेन कर देता है तो आप अपने लफ्ज़ों में अच्छा लिख सकते हो। तो पेपर चेकर जो होता है वो ज़्यादा अपील करता है पेपर चेकर को कि भाई बच्चे ने खुद लिखा है और उसे पता है, उसने रट्टा नहीं लिखा, उसने रट्टा महज नहीं लिख दिया, उसने अपने नॉलेज से ये लिखा है। और आप एक अच्छा सा पैरा बना के जब सिंपल फॉर्म में लिखते हो, और याद रखें कि इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और कंक्लूजन जो है वो ऐसा हो कि सम अप कर दे उस सब को। जैसे अरिस्टोटल ने कहा था, अरिस्टोटल सेड कि इंट्रोडक्शन ऐसा हो ट्रेजेडी का कि पता चले कि इसके बाद कुछ होना है, इसके बाद मिडल भी होगा,
इसके बाद एनाग्नोसिस, पेरिपिटिया और ये सब कुछ आएंगे, डिस्कवरी, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, सब कुछ आएगा। और फिर कहता है कंक्लूजन ऐसा हो कि पता चले कि इसके बाद कुछ नहीं है। यू हैव समड अप वेल। So this is what we have to bring in our assignment. Whenever we are going to attempt questions, we have to keep it in our mind whenever we are going to attempt paper. In short, the difference between the phonetics and phonology is that of the generality and particularity, whereas the phonetics is the science of speech, sounds, the productions, transmissions, receptions, and the science to represent them in general with no particular reference to any one language. Phonology is a study of the vocal sounds and sound changes, phonemes and their variants in a particular language. If phonetics can be likened to a word, phonology is a country. अगर phonetic कहता है कोई दुनिया है तो phonology उसका एक country है, इसका मुल्क है। Phonetic is the one of the same for the languages of the world. सारी दुनिया की ज़बानों के लिए phonetic same है, एक ही है। आप चाहे कोई भी लैंग्वेज पढ़ें तो यही माउथ की स्टडी करनी पड़ेगी, वोकल कॉर्ड्स की, लेरिंग्स की, फेरिंग्स की, यूवला की, हार्ड पैलेट की, सॉफ्ट पैलेट की, ये सारा कुछ स्टडी करना पड़ेगा। चाहे आप अरबिक पढ़े, उर्दू पढ़े, फ्रेंच पढ़े, पुर्तगाल पढ़े, स्पेनिश पढ़े, कोई लैंग्वेज भी पढ़ेंगे आपको ये माउथ की स्टडी करनी पड़ेगी, वो फोनेटिक्स होता है। बट द फोनोलॉजी ऑफ वन लैंग्वेज विल डिफर फ्रॉम द फोनोलॉजी ऑफ द अदर। होप यू गॉट आइडिया अबाउट manner of articulation, plosive, nasal, fricative. You got idea about phonetics and phonology. You have learned about allophones and phonemes. Hope you got all. And tomorrow we'll discuss. Tomorrow I think is a leave, and we'll discuss on Monday. कल मैं आपके लिए टेस्ट बना दूंगा जो आपने पढ़ा है, और टेस्ट काइंडली दिया करें, कोशिश किया करें अटेम्प्ट करने की। तो अब इन टाइम अटेम्प्ट नहीं करते, इस दफ़ा मेरी बुक का मसला है। आपके उधर बुक कहीं शॉप से नहीं मिलती, आपके जो पास कोई